which we will be clarified in this particular video. So my name is Hemant Lavangare. So I am the designer and the coordinator for these two master degree programs. And Dr. Deshmukh, which all you know, is VC of Mumbai University, and she is Mrs. Bolkar. She is representing Garwari Institute of Career Education and Development, Kalina campus in Mumbai. So I will just start the video. The Garwari Institute of Career Education, and also on behalf of Master My Life, the organization set up by my colleague Shri Lavangare. It is a pleasure to be with you this afternoon, though I was little late in arrival and I may have to leave little early as well due to some other commitment. But nevertheless, I always believe that when university launches a new program, it is in tune with the requirement of the society, and that is what is the tradition of the Mumbai University. This 160-year-old Center of Excellence in Education, which will complete 160 years on 18th of July, has always stood by the demands of society. We, all of you may be aware that we started with the first batch of graduates numbering only 4 when our first batch of graduates passed out, and now we have 8 lakh students studying in the face-to-face program, as well as about 95,000 students in the distance mode of education. Garwari Institute has been one of our flagship departments, an autonomous department of the university, which was set up in 1985. And more than 3 decades, this organization that was envisioned by Garwari family has been imparting skill development related programs, and not only skill development programs, but all those courses which have slightly better employability than the normal courses that a student aspires to undertake. And it is evident from the courses, the brochure of Garwari Institute will be soon given to you, and you will see that each and every program of Garwari Institute has been very thoughtfully coined for the needs of society, representing different strata of society. We particularly look at those unreached population where we would like to reach by taking our programs, and therefore there is a larger amount of flexibility than what we observe in the face-to-face or regular programs of the university. These programs are designed by experts in their respective areas, and the most important point is that there is a larger amount of flexibility provided to Garwari Institute by making it autonomous, and therefore there is complete autonomy in terms of deciding which programs to implement, which programs to develop, and how they should be developed. We, as you know, have undergraduate and postgraduate programs and even diploma courses. And as per the requirement of people, we have been able to time these programs also at different times of the day, rather than a very routine 10 to 2 or 2 to 4 kind of schedule that we see in the postgraduate departments or in any regular colleges. This particular endeavor of joining hands with Master My Life came through enormous amount of interactions and confirmation of our thoughts that such program, which is essential for every individual, like what we say that when you are a grown child, besides walking, which is a natural process, you should also know swimming and cycling. In that context, I personally feel that every individual, after going through the syllabus, we will confirm my observations that every individual requires certain amount of training in terms of ethics, management of people and human relations. This all comes out of intelligence, but that intelligence also needs to be brushed up.
It is there within, but it has to be basically nurtured. And to understand the intricacies of human brain as well as the emotions and the relationships, both at the emotional level as well as in the physical context, they need to be understood properly before we enter into them. And therefore, the exposure that the students who would opt for these programs are going to get is going to be enormous. This will probably provide every individual a lifetime experience of how to deal in society. The universities and the institutes of higher education provide you formal knowledge, but what is important is to attain wisdom so that you are able to stand on your own feet and also support that part of section of society which many times do not get opportunity to go for higher education or even for basic education. And therefore, the first of its kind of the syllabi that you would see from these two postgraduate programs that we are going to launch from this month will have that difference. And with this difference, we are coming to you to talk about the programs and give you highlights which you just saw in the documentary prepared by Shri Lavanga. And besides that, you may have some questions to ask. You will be answered them appropriately as well as up to the satisfaction of all of you. Garhwal Institute has several plans, and this particular program will probably be an icing on the cake. In the last 2 years' time, Garhwal Institute has been the only department of the university where the institute has introduced 23 different programs, and it is by far the largest number of programs developed by any department of the university or for the university. Incidentally, in the last 20 months, 21 months, the university has introduced 67 different courses and programs, and you will definitely be able to judge that 23 is not a small number, and therefore we are very proud that the Garhwal Institute is reaching and fulfilling the expectations of different strata of society by providing the people with what is required. It is always said that you should do your best and leave it to the destiny. But I personally believe that you should always do what is required to be done. And that is what Garhwal Institute is doing. And I would like to wish both Garhwal Institute and Master My Life a great success in this combined effort to provide opportunity to our people and students and youngsters to be employable and to become a better human being and to approach the challenges of life with confidence. With these extended words, I would like to thank all of you personally and also request you to mark 18th July in your diary, the day on which the university will complete 160 years, and we would like to invite you for a program that is going to be conducted by the university in the Convocation Hall or at Kalina campus, depending on the requirement of the program. And you are most welcome to join us to celebrate 160th year of celebration on 18th of July, that is next month. Thank you very much. Thank you, Madam Borkar, and thank you, Shri Lavanga. But I would also request Madam Borkar to say a few words. Thank you. So, good afternoon everybody, and it is really a proud moment, and we are really looking forward to this association. So, as Honorable Vice Chancellor said, in the last 2 years we have got 23 new programs, and each one of them is catering to a very unique or different section of the economy. So we started with sports management, and today our launch of emotional intelligence. So from sports management to media to going into CSR related programs, skilling programs to emotional intelligence. So in these 2 years, last 24 months have been very exciting for us and growing and challenging period. And we
we promise that we will continue our good work as we have done in the last 30 years. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे गरवारे इन्स्टिट्यूट आणि मास्टर माय लाईफ या दोन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई विद्यापीठ हा अतिशय आगळा वेगळा असा दोन वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचा मुहूर्त आजच्या दिवशी साधून या दोन्ही प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ होत आहे. आणि मुंबई विद्यापीठाच्या गरवारे इन्स्टिट्यूटने गेल्या 32 वर्षांमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट या विषयामध्ये अतिशय भरीव कामगिरी केलेली आहे. आणि गरवारे समूहाने या संस्थेची स्थापना केल्यानंतर हजारो विद्यार्थ्यांना या संस्थेमध्ये शिक्षण घेऊन आपल्या पायावर उभं राहता आलेलं आहे. मुंबई विद्यापीठाचं वैशिष्ट्य जे इतर विद्यापीठांचं असतं की समाजातील प्रत्येक प्रश्नाला विद्यापीठाकडे उत्तर असतं आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी ज्ञानार्जन हा जो मार्ग असतो तो विद्यार्थ्यांनी स्वीकारावा, तरुण पिढीने स्वीकारावा अशी सर्व विश्वविद्यालयांची अपेक्षा असते. आणि तो मार्ग स्वीकारत असताना फक्त तुम्ही ज्ञान मिळवून चालत नाही, परंतु तुम्हाला ज्ञान मिळवल्यानंतर स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी जी एक वेगळी क्षमता लागते ती क्षमता बऱ्याच वेळेला तुम्हाला केवळ ज्ञान मिळवून साधता येत नाही. आणि अशा वेळेला मुंबई विद्यापीठाच्या 160 वर्षांच्या इतिहासामध्ये 407 वेगवेगळ्या प्रकारचे अभ्यासक्रम विद्यापीठ राबवत असताना गेल्या 20 महिन्यामध्ये केवळ गेल्या 20 महिन्यामध्ये सुमारे 67 नवीन अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाने सुरू करून एक नवीन उच्चांक गाठला असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु याच्यामध्ये अभिमानाची गोष्ट तर आहेच, परंतु एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस किंवा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तेवढ्या संधी आपण आपल्या समाजातील तरुण पिढीला उपलब्ध करून देत आहोत. आणि स्किल डेव्हलपमेंट किंवा स्किल इंडिया हा आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांनी जो नारा दिलेला आहे त्याच्याशी संलग्नता साधत असताना स्किल बेस्ड उपक्रम आपल्या विश्वविद्यालयाच्या माध्यमातून कसे आपल्या तरुण पिढीला देता येतील जेणेकरून त्यांना स्वतःच्या विकासाबरोबरच समाजातील अशा अनेक उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांकडे पाहता येईल ज्यांना ते प्रेरणा देतील आणि त्यांना सुद्धा स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करू शकतील. तर अशा प्रकारचे हे दोन वेगळे अभ्यासक्रम जे आज आपण अनाऊन्स करत आहोत त्याचे प्रणेते आहेत आमचे मित्र श्री हेमंत लवंगारे आणि गरवारे इन्स्टिट्यूटच्या असिस्टंट डायरेक्टर शिल्पा बोरकर मॅडम माझ्या बरोबर आहेत. आणि या दोन्ही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभ्यासक्रम आपण या वर्षीपासून राबवत आहोत. याच्यातून मनामधील म्हणजे आपल्या मेंदूमधील ज्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया असतात म्हणजे आपण ज्याला मेमरी म्हणतो आणि ती मेमरी आपण कशा पद्धतीने एक्सप्रेस करतो त्या मेमरीतले कुठल्या गोष्टी आपण घेऊन बोलत असतो, वागत असतो किंवा आपला चरितार्थ चालवत असतो त्याचा एक अभ्यास सायकोलॉजी या विषयातल्या अतिशय कठीण अशा वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास या अभ्यासक्रमात तर आपल्याला होणार आहेच, परंतु समाजातील विविध घटकांबरोबर राहत असताना आपण या समाजामध्ये जगत असताना कशा पद्धतीने आपली वर्तणूक असायला पाहिजे, कशा पद्धतीने आपण समाजातील वेगवेगळ्या घटकांबरोबर संवाद साधला पाहिजे. आणि पृथ्वी हा जर एक आपण कुटुंबाचा भाग मानला तर या जैविक विविधतेच्या पृथ्वीवरती मनुष्य प्राणी हा केवळ 17 लाख वेगवेगळ्या प्रजातींपैकी एक प्रजाती असताना सुद्धा 700 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या झालेली असताना आपण कशा पद्धतीने आपल्या आयुष्याचा मार्ग शोधला पाहिजे आणि समाजामध्ये आपले वेगळं स्थान निर्माण केलं पाहिजे अशा पद्धतीचा एक अनुभव देणारा आणि आपल्याला स्वयंपूर्ण करणारा अशा या अभ्यासक्रमाची आपण आज घोषणा करत आहोत. आणि त्याचं संपूर्ण श्रेय श्री लवंगारे यांच्या स्वतःच्या मेहनतीला आहे. आणि गरवारे इन्स्टिट्यूट बरोबर त्यांनी टायअप करून गरवारे इन्स्टिट्यूटला ही संधी दिलेली आहे. आणि भारतामध्ये अशा प्रकारचा राबवला जाणारा हा पहिलाच अभ्यासक्रम असणार आहे. त्यामुळे याचं आगळं वेगळं पण तुम्हाला मगाशी आपण पाहिलेल्या डॉक्युमेंटरीमधून लक्षात आलं असेलच, परंतु गरवारे इन्स्टिट्यूटचं ब्रोशर ज्याच्यातनं या संस्थेची ओळख पडते
आणि या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे ब्रोशर्स पाहिल्यानंतर, तो अभ्यासक्रम पाहिल्यानंतर आपली खात्री होईल की हे दोन्ही अभ्यासक्रम आज तरुण पिढीला ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे अशा प्रकारच्या सर्व अपेक्षांची पूर्तता करणारा अभ्यासक्रम असणार आहे. आणि या अभ्यासक्रमातून आपल्याला समाजातून एक चांगल्या नागरिकांची जडणघडण आणि त्यांची स्वयंपूर्णता साधता येऊ शकेल असा मला विश्वास वाटतो. आपण सर्वजण इथे आलात त्याबद्दल मी माझ्या विद्यापीठातर्फे आणि आमच्या दोन्ही सहकाऱ्यांच्या तर्फे अतिशय हृदयपूर्वक आभार मानतो. आणि आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण प्रश्न माझ्या दोन्ही सहकाऱ्यांना विचारावेत आणि या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला नक्की मिळतील. आणि अजून एक 5 मिनिटांनी मी विद्यापीठात जाण्यासाठी निघणार आहे, कारण मला थोडंसं अजून एका मीटिंगसाठी जावं लागणार आहे. तर आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देतो. आणि जे आत्ता मी मराठीमध्ये बोलत असताना या सभागृहामध्ये आलेले आहेत त्यांना एक सांगू इच्छितो की येत्या 18 जुलै रोजी मुंबई विश्वविद्यालयाला 160 वर्ष पूर्ण होणार आहे, म्हणजे आपल्या स्थापनेला. आणि त्या स्थापना दिनाचा कार्यक्रम आपण कलिना येथे किंवा फोर्ट येथे त्या कार्यक्रमाच्या आवश्यकतेनुसार साजरा करणार आहोत. त्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वांनी जरूर यावं अशी माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे. आणि या दोन्ही अभ्यासक्रमांना आपण यथोचित प्रसिद्धी द्यालच याची मला खात्री आहेच. पण आपल्या सहभागातूनच मुंबई विश्वविद्यालयाचं हे काम समाजातील नव्हे तर सगळ्या जगातील लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. आणि त्यामुळे मी आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा विशेष आभार मानतो. प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे आपण सर्व सदस्य समाजामध्ये खूप मोठं काम करत आहात आणि त्याबद्दल मी आपलं अभिनंदन करतो. धन्यवाद. किती जागा? 60 येस, 2 कोर्सेस आहेत. प्रत्येक कोर्समध्ये 40 म्हणजे 40 आणि 40 80. राइट. येस, या राइट. सो मतलब हिंदी इज प्रेफर्ड हियर और इंग्लिश? नाही, ज्याने ज्यांना विचारलं त्या भाषेत उत्तर. ओके, हिंदी. ओके, राइट. हिंदी नहीं बेटर. हिंदी. ओके. सो मैं खुद कॉर्पोरेट फील्ड में 24 साल से था, 24 इयर्स. एंड ग्रेजुएट ट्रेनी से लेके तो कंपनी का एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी का हेड बनने तक का जो मेरा जर्नी था, उस जर्नी में मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए कि जो ग्रेजुएट्स जो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड वो प्रॉब्लम का रीज़न ये है कि हमारा जो सिलेबस होता है इंस्टीट्यूट्स का या यूनिवर्सिटीज़ का, वो सिलेबस एंड इंडस्ट्री में जो चलता है उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है. राइट. तो मतलब मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड MBA हूँ, लेकिन जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड MBA करने के बाद में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि कंपनी में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो टोटली डिफरेंट है, कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है. सो ये जो सिलेबस है वो तैयार करने के पहले मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस प्लस कम से कम 100 इंडस्ट्री के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मैंने डिटेल्ड सर्वे किया कि अगर आपको किसी को रिक्रूट करने का है एट ए मैनेजमेंट लेवल और एट ए से इंट्री मैनेजरियल लेवल, तो आप उनमें क्या कॉम्पिटेंसी चाहते हो. तो जो उन्होंने मुझे आंसर्स दिए, डिसीजन मेकिंग है, इथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म है, तो वो सारे पॉइंट मैंने मेरे सिलेबस में इंटीग्रेट किए. एट द सेम टाइम मैंने ये भी सिलेबस में वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि सपोज अगर मेरे बैच में 80 लोग हैं तो हर एक बंदे का जो प्रोफाइल है वो मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स या इस टाइप का नहीं होगा. डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हैं. इसके लिए मैंने डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस यहाँ रखे हैं कि जो लोग मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं दे कैन टेक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन. जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में अच्छे कर सकते हैं दे कैन टेक ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलाइजेशन. जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है दे कैन टेक ए स्पेशलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये पूरा इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट एंड आल्सो जो लोग मास्टर डिग्री करते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि उन्हें एक अच्छा जॉब चाहिए एंड उन्हें
इस टाइप का एजुकेशन चाहिए कि जो इंडस्ट्री में जाके वो इमीडिएटली काम कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में जाके उनको फिर 1-2 साल मतलब प्रॉब्लम होगा एंड फिर वो सीखेंगे। तो वो जो इंडस्ट्री का जो कल्चर है वो पूरा हमने सिलेबस में इंक्लूड किया। अरे सो मैं खुद ऑटोमोटिव फील्ड में था, तो ऑटोमोटिव फील्ड में टाटा है, महिंद्रा है, मतलब जो टॉप की कंपनीज है ऑटोमोटिव फील्ड में, मैंने उनसे बात की। देन बैंकिंग में सिर्फ मेरी जो कंपनी है उसका एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें देयर आर पीपल फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, देयर आर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग फील्ड, रिटेल फील्ड। तो अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे mastermylifeedu.com, तो उसमें वो पूरा मेरा एडवाइजरी बोर्ड है। तो उनकी जो खुद की जो कंपनी जो कांटेक्ट है, तो उन सबसे मैंने वो सर्वे किया। कोर्स में कौन से टॉपिक कवर है? यस, राइट। तो ऑफ कोर्स वो जो हमने आपको ब्राउचर दिया है उसमें वो सिलेबस है, लेकिन मैं जनरिक वे से बोलता हूँ। कोर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो टॉपिक है कि जो आज वर्ल्ड वाइड बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उसकी एक भी डिग्री अवेलेबल नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस की। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड पूरे टॉपिक हमारे कोर्स में है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एडवांस वर्जन है, उसे बोलते हैं बिहेवियरल इंटेलिजेंस। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करने के बाद में बिहेवियर को किस तरह से चेंज करने का एंड टीम में किस तरह से बिहेव करने का, तो उसे बिहेवियर इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसका भी पूरा हमारे कोर्स में है। और एक साइंस है जिसे बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमें किस तरह से किस आदमी से बात करने की है, वो बात करने से उसके ऊपर क्या परिणाम हो सकता है। तो ये पूरा जो न्यूरो लैंग्वेज है, तो वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इसमें है। अगर कोई विद्यार्थी अगर ये बाहर करना चाहेगा कि जो मैंने किया है, तो उसका जो एक्सपीरियंसेस होगा, अगर किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का है, बिहेवियरल इंटेलिजेंस सीखने का है एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक, ये तीन टॉपिक, बाकी तो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये 3 टॉपिक अगर उन्हें मार्केट में कोर्सेस अगर लेने के हैं, तो उसका कॉस्ट 10 लाख रुपीस प्लस है आज के डेट पे, क्योंकि वो सब मैंने किए हैं, राइट। तो वो पूरा का पूरा सिलेबस हमारे कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अभी ये हो गया क्या, ये हो गया उसका पर्सनैलिटी की तरफ, लेकिन सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट होने से भी काम नहीं चलता है इंडस्ट्री में। तो उसे डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए, उसमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए कि इंडस्ट्री में हमें किस तरह से काम करने का है। ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। अभी ये हो गया पर्सनैलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन इंडस्ट्री में काम क्या होता है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है, नहीं तो मार्केटिंग का काम होता है, नहीं तो कम्युनिकेशन का काम होता है, नहीं तो स्ट्रैटेजी का काम होता है, नहीं तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम होता है, नहीं तो ऑपरेशंस का काम होता है। तो हमने ये सारे स्पेशलाइजेशन हमारे कोर्स में डाले हैं, ताकि ये पूरा सीखने के बाद जब आदमी इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आराम से जॉब मिलना चाहिए। सो वो स्पेशलाइजेशन का प्रोविजन हमने इस कोर्स में किया है। सो द टॉपिक्स which are related to these industry functions वो हमारे सिलेबस में है। कोर्स का क्या मतलब है, कोर्स करने के बाद पॉसिबल आएगा। अभी आपने बाजार में बताया कि 10 लाख रुपए लगता है, आपके यहाँ कितने का? 5.6 lakh for 2 years। कुछ इंटर्नशिप भी होगा सर? इंटर्नशिप? Yes, yeah, right. So इंटर्नशिप का मतलब हमारा फॉर्मूला ये है कि सेकंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर इज कॉमन बिटवीन द 2 कोर्सेज, सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है एंड रोज 1.5 घंटा स्टूडेंट विल डायरेक्टली वर्क इन द इंडस्ट्री। सो डेली देयर विल बी ए वर्क इन द इंडस्ट्री डेली फॉर द एंटायर 1 year पीरियड। या इस प्लेसमेंट कौन से वाले सेक्टर्स में होगा? राइट। तो सी ये जो कंपनीज एंड प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन मेरे वेबसाइट के ऊपर है। सो सेक्टर्स और सी अभी हमारा जो कोर्स है वो कोर्स का बुनियाद क्या है, बुनियाद है ह्यूमन रिलेशंस। अभी किसी भी कंपनी में अगर आपको काम करने का है, सो विदाउट द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस आदमी काम नहीं कर सकता है। सो ह्यूमन रिलेशन का ज्यादा महत्व इंडस्ट्री में कहाँ है,
सेल्स में है, मार्केटिंग में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, मटेरियल्स मैनेजमेंट परचेस में है, ऑपरेशंस में है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में है, राइट। तो ये सारे फंक्शन में हमने जानबूझ के स्पेशलाइजेशन रखे हैं ताकि स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर फंक्शन में जॉब मिले। 40 एंड 40 मतलब 2 कोर्सेस है हमारे। एक कोर्स का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड एक कोर्स का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लाइफ कोचिंग। तो दोनों में 40-40 तो टोटल 80 सीट है। राइट, भारतात पहिल्यांदा अशा पद्धतीचे कोर्सेस आता फक्त ग्लोबल युनिव्हर्सिटी ज्या आहेत हार्वर्ड आणि ऑक्सफोर्ड, तर यामध्ये फक्त हे इमोशनल इंटेलिजन्स आणि ह्यूमन रिलेशनचे कोर्सेस आहेत। या टॉपच्या जर ग्लोबल इन्स्टिट्यूट सोडल्या तर नॉर्मल ग्लोबल इन्स्टिट्यूट मध्ये पण हा कोर्स नाहीये आणि भारतात ऑफ कोर्स नाहीये। या राइट, सो हमारा जो फैकल्टी का जो सिलेक्शन का वो जो क्राइटेरिया है वो है कि एजुकेशन फील्ड में अगर किसी को कॉर्पोरेट में भी एक्सपीरियंस है तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे एंड हम एक ट्रेनिंग मैनुअल बना रहे हैं, राइट। सी आज के डेट पे क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, वो ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर सकते। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में हमारी आदत क्या है, हर 5 मिनट में हम हमारा मोबाइल चेक करते हैं, तो हमारा अटेंशन स्पैन अभी कम हुआ है। तो जो सिखाने का जो हमारा जो तरीका है उसमें ऑडियो वीडियो, ग्रुप वर्क, वर्कशॉप्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सबका मिश्रण करते हुए हमने उस कोर्स को डिजाइन किया है। जस्ट अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो ट्रेनिंग मैनुअल रहेगा, सपोज एक सब्जेक्ट में 4 मेजर पॉइंट है, उस 4 में 4-4 सब पॉइंट है, तो हर सब पॉइंट के लिए कौन सा लर्निंग मीडियम यूज करने का। फॉर दिस सब पॉइंट यू हैव टू गो फॉर ए ग्रुप वर्क, for this sub point you have to have a interactive session, for this sub point you have to go for a presentation। so इस तरह का हमारा ट्रेनिंग मैनुअल है। so कोई भी फैकल्टी आसानी से समझ सकती है कि उसे वो पर्टिकुलर लेक्चर किस तरह से डिलीवर करने का। आपली एक सेकंड, आपली हरकत नसेल तर मला निघायला हवं आहे, कारण ऑफिसला अजून एका कार्यक्रमाला जायचं आहे। थैंक यू सो मच। में टीचर्स जो कॉलेज से प्रोफेसर आने चाहिए उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ So you don't expect teachers to immediately start working, but our system has been set in such a way that when all the teachers will come for evaluation, because it's online evaluation, and we have 294 centers, which means for every college, if your teacher wants to go and evaluate papers in his or her own college, then that facility we have provided. So the job of a teacher, if they perform and all of them turn into this exercise, then within 10 days the entire answer sheets will be corrected. Okay, so students still not need to worry about the Not at all, because this is the first time that evaluation at such a large level has been done, though we had 1/3 or 1/5 of the number we were doing for the last 5 years. Now, sir, as we can talk about this course. This is as now there is one more course which is similar to it. It's MBA. अभी डिमांड है MBA की सबसे ज़्यादा है, and students blindly follow that कि okay, after engineering also if we opt for MBA we will get a placement. There is an institute like Symbiosis, and even in Symbiosis and except Symbiosis few of the institute कोई भी 100% placement की assurance नहीं देता है। And now this is a new course जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस। सो अकॉर्डिंग टू यू सर, आप क्या इसमें ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट बिलीव करें इस कोर्स को ऑप्ट करें और दे फील दैट उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, बिकॉज आज के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी इज द मेन फैक्टर व्हाई स्टूडेंट वांट टू कंटिन्यू। I can tell you that in next 20 years time 40% of the jobs in the world will not be there. So you will have to learn some skills in addition to your formal education, where you can earn yourself livelihood and you can stand on your own feet. So these courses are basically complementary courses which are supplementing your basic education, because these are all postgraduate programs. So when you join any organization like Infosys or any multinational company,
there is something called as orientation. For first 2 to 3 months time, there is induction training. Now induction training is basically to orient that professional to suit the needs of that organization. But if you are able to undertake this particular program, then you are ready for any employment, because you will be equipping yourself in such a way that you will be able to perform in a much better way. And therefore this is not a basic degree or basic education that you are aspiring for getting a job. For example, you are an engineer, so basic degree is a technology. Yeah. Or if you are a scientist or a doctoral student or a PhD holder, then you are a PhD in that particular subject. But the gap between the degree and the employment, that gap will be bridged by these courses, and that will make you a better human being, better professional, so that the time invested by the company in terms of induction training and so on, that will be nullified. So companies will welcome, because from the corporate field where I have come in, company has spent 6 lakh rupees on my emotional intelligence coaching. अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कितने अप्लाई किया है? We are launching the first क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, एक तो हमारे विश्व के सबसे जाने माने विश्वविद्यालयों में मुंबई विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है, और हमारे भारत में वो जो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी उसमें से एक मुंबई विश्वविद्यालय है। और 160वें साल में और 160 साल तक मुंबई विश्वविद्यालय ने समाज के हर एक उस प्रश्न को छुआ है, हर एक उस आदमी की भावना को छुआ है, उसको काबिल बनाया है एजुकेशन इम्पार्टिंग से और वैल्यू एडिशन से, और जिसको हम एथिक्स कहते हैं और लाइफ वैल्यूज़ कहते हैं। इसीलिए बच्चे आज भी अट्रैक्ट होते हैं मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो ऐसी महान परंपरा रखने वाला मुंबई विश्वविद्यालय पिछले कुछ सालों में अपने देश की जो प्रायोरिटी है उसको अलाइन कर रहा है, और उसके माध्यम से अपने आप में एक अलग मिसाल साबित कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले 2 सालों में मुंबई विश्वविद्यालय ने 67 नए प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस रिकॉर्ड के अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सभी प्रोग्राम जो हमने डेवलप किए हैं वो समाज को आज क्या चाहिए उसके मुताबिक बनाए गए हैं। इसके लिए मुझे आनंद है कि ऐसे 160 साल परंपरा रखने वाले विश्वविद्यालय का सेवक होने का मुझे सौभाग्य मिला है, और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय और ऊंचाइयों पर जाएगा, और आप समाज की जो भी समस्याएं होगी, जो भी समाज का विश्वास है, उस पर आज तक हम खरे उतर पाए हैं, और इसी परंपरा को हम कायम रखना चाहेंगे। सर, एक डीसी का जॉब एकदम टफ होता है, जिससे हाउ वाज द चैलेंज, कैसा अनुभव रहा सर आपका? मुझे लगता है कि अगर आप विश्वविद्यालय के लिए सोचो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जॉब होता है, और इसमें अगर आप तन मन धन से काम करना चाहो तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई चैलेंजेस है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूँ और यहाँ मैंने अध्यापन का काम किया है। तो इस अनुभव का मुझे हमारे विश्वविद्यालय के सभी साथियों के साथ काम करने के लिए उसका बहुत उपयोग होता है, और सबको साथ लेके चलना ये हमारी सोच है, और उसका मैं पालन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप पर ज़्यादा विश्वास रखो, और जो भी करो तहे दिल से करो, ताकि आप अपने आप में एक अनुभूति ला पाएंगे कि किस तरह से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के बाद वो अपने बलबूते पर समाज में एक अपना स्थान निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। मला असं वाटतं का की 2 वर्षाचा फुल टाईम कोर्स आहे, आणि मुलं 2 वर्षाचा फुल टाईम कोर्स आहे, जेव्हा आपण म्हणतो की हा सप्लिमेंटरी कोर्स आहे, हा डायरेक्टली कोर्स नाही, पण हा फुल टाईम कोर्स असावा असं वाटतं? सप्लिमेंटरी मी अशासाठी म्हटलं की मुलांना नोकरी मिळण्यासाठी शिक्षण घेतल्यानंतरसुद्धा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स करावे लागतात। कधीकधी तुम्हाला नोकरी मिळण्यासाठी अनेक वर्ष झगडावं लागतं, पण या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला एकतर मुंबई विद्यापीठाचं हे ऑफिशियल पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री आहे, त्याच्यामुळे या डिग्रीचं रेकग्निशन आज आपल्या देशामध्ये अजूनपर्यंत का नाही आहे, कारण आपल्या देशातला हा पहिला प्रोग्राम आहे। पण मला खात्री आहे की हा प्रोग्राम जेव्हा आम्ही सुरू करू त्यानंतर पुढच्या वर्षी तुम्हाला कमीत कमी 50 भारतातले विश्वविद्यालय असे आढळतील की ज्यांना हा प्रोग्राम सुरू करावा असा वाटेल, आणि तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की वेगवेगळ्या कंपन्यासुद्धा हा प्रोग्राम करणाऱ्या मुलांना प्राधान्य देऊ शकतील। ऑनलाईन असेसमेंटच्या बाबतीत प्राध्यापकांचं असं म्हणणं आहे की
टेंडरिंग उशिरा निघालं आणि त्याच्यामुळे काम उशिरा सुरू झालं आणि म्हणून ह्या सगळ्या प्रोसेसला उशिरा नाही, टेंडरिंग उशिरा झालं ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु या प्रक्रियेला सगळ्या शिक्षकांनी एकत्र येऊन जर उत्तरपत्रिका तपासायला सुरुवात केली तर 10 दिवसामध्ये सगळ्या उत्तरपत्रिका तपासून होऊ शकतात. त्याच्यामुळे ज्याबद्दल तुम्ही आत्ता असं म्हणालात तर त्याच्यामध्ये तथ्य नाही असं माझं म्हणणं नाही, ते सत्य आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की सगळ्यांनी जर एकत्र काम केलं तर या म्हणजे साधारण किती तास काम करावं किंवा काय कसं नाही, काही नाही, तुम्ही जेवढा वेळ काम करता तेवढाच वेळ काम करायचं. तुम्हाला काही रात्रंदिवस काम करायला कोणीच सांगत नाही. इनफॅक्ट तुम्ही ऑनलाईन मार्किंग सिस्टीममध्ये जर पाहिलं तर तुमचा पेपर तपासण्याचा 30% वेळ वाचतो. म्हणजे तुम्ही जर दिवसातनं 6 तास काम करून किंवा 8 तास काम करून 30 उत्तरपत्रिका तपासत असाल तर त्याच्यापेक्षा 30% कमी वेळामध्ये तुम्ही तेवढ्या उत्तरपत्रिका तपासू शकता. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये त्यांनी काही एक्स्ट्रा काम करावं अशी अपेक्षाही नाही. आणि म्हणून पूर्ण सुट्टी गेल्या अनेक दशकांमध्ये माझा दावा आहे आणि हे खरं आहे की आजपर्यंत शिक्षकांना पूर्ण सुट्टी 30 दिवसाची कधीही मिळाली नव्हती. त्याच्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे की त्यांना पूर्ण सुट्टी उपभोगता आलेली आहे. आणि आता 10 ते 12 दिवसात त्यांनी जर त्यांचं कर्तव्य केलं तर सगळ्या उत्तरपत्रिका तपासून होतील आणि त्याच्यासाठी हा त्यांच्या नोकरीचा भाग आहे, ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते होईल नक्की. बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कंप्लेंट आ रहा था एमकॉम डिस्टेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है अच्छी तरह से काम नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? बहुत सारे हमारे नहीं, मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स के साथ से बहुत बदतमीजी से बात की जाती है. नहीं, इसमें मैं एक कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका एक दूसरे के साथ जो संबंध है, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का हो या तो चाहे कस्टमर और प्रोवाइडर का हो या तो कोई इंक्वायरी करने जा रहा है और इंक्वायरी देने वाले का हो, इन्फॉर्मेशन देने वाले का हो, वो किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकें. और मैं ये दावे से कहता हूँ कि समाज के हर स्तर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिससे आपको अच्छा अनुभव नहीं आएगा, लेकिन हमारी भावना ये है कि हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारे सहयोगी है, जो बैठते सेकंड फ्लोर में उनकी तरफ से बहुत बदतमीजी. नहीं, मुझे क्या लगता है कि ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है. नहीं, मैसेजेस सेंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन जानकारी मिलती है. मुझे लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि ये हमारे सभी सहयोगी जो है वो विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आप किसी को भड़काते हो तो अपने पेशेंस के मुताबिक हर एक का टेम्पर अलग अलग होता है. जैसे आपको कोई आके तकलीफ़ देता है तो उसकी एक हद होती है, उसके बाद फिर आप टॉलरेट नहीं कर पाते. तो जो नियमों के मुताबिक करना चाहिए, जो ह्यूमन लेवल पे करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे लोग काम करते हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने भी बदतमीज़ी से किसी के साथ पेश आया हो. धन्यवाद.